لکھنؤ کی آن بان شان، اردو زبان کا وقار، صحافت کی آبرو، افسانے کی دنیا کا بے تاج بادشاہ احمد ابراہیم علوی شان بے نیازی سے 70 سال تک اردو زبان و ادب کی خدمت میں منہمک رہ کر بالآخر دنیا کی نظروں سے خود کو نہ چھپا سکا، اور اہالیان لکھنؤ ہی نہیں بلکہ گورکھپور، بارہ بنکی، شاہجہاں پور اور دور دراز کے ادیب و شاعروں نے ان کی صلاحیتوں اور خدمات کو سراہا۔ آل انڈیا مائنارٹیز فیڈریشن اور شائقین ادب نے انہیں آفتاب صحافت اور وقار لکھنؤ کے ایوارڈ سے نواز کر ان کی خدمات کا اعتراف کیا۔ پیش ہے لرنا آن لائن ود فیضان خان کی آنکھوں دیکھی رپورٹ۔ میں چاہتا ہوں اپنی ٹوٹی پھوٹی تحریر کے بعد کسی اہم شخصیت کو دعوت دوں۔ سبھی اہم ہیں ہمارے علاوہ، اور چودھری صاحب بہت بول رہے ہیں، انہیں کو سن لیا جائے پہلے، تاکہ ان کے بعد جو کچھ ہو وہ صحیح ہو۔ عبید اللہ چودھری صاحب مائک پر۔ پیادہ بھی آنا پڑے، تمام ٹرینیں بند کی جائیں، بسیں پھونک دی جائیں، تب بھی میں آ سکتا ہوں پیدل۔ تو اس طرح کے جذبے کے لوگ بہت قابل قدر ہوتے ہیں۔ ان کا آرٹیکل مل گیا ہے، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر کے ساتھ میں چودھری صاحب کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ علوی صاحب کی صحافت پر انہوں نے جو لکھا ہے، یقیناً وہ سننے سے تعلق رکھے گا۔ ان کو داد آپ اسی انداز سے دیجیے۔ تقریر نہیں ہوگی۔ السلام علیکم۔ جسے سلام نہ منزل کرے وہ راہی کیا، جو دوریاں نہ سمیٹے وہ فاصلہ کیا۔ ارے یہ گورکھپور کی بات کر رہے ہیں، لوگ تو لندن اور امریکہ سے چلے آتے ہیں۔ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ تقریر نہیں ہوگی، اگر کچھ لکھ کے لانا ہو تب تو آئیے۔ تقریر آپ کی بہت لمبی ہوتی ہے، کسی کو بولنے نہیں دیتے ہیں، تو میں حیرت میں آ گیا، فوراً لکھنا شروع کر دیا، شاید کچھ لکھ لیں۔ صحافت کی دنیا کا ممتاز فکشن نگار، فکشن پر میں نے کام کیا، فکشن پر ہی بات کرتا ہوں۔ احمد ابراہیم علوی اردو صحافت اور اردو فکشن کا ایک عظیم المرتبت نام ہے۔ یقیناً یہ شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ راکین الروح کا اس شخصیت سے کم و بیش 35 برس کا ساتھ رہا ہے اور اب بھی ہے۔ یہ ایک ایسی ہم اجہر شخصیت ہیں جن کے بارے میں مجھے لکھنے کے لیے کہا جائے تو مجھ پر ہیبت سی طاری ہو جاتی ہے کہ میں کہاں سے اپنی بات شروع کروں۔ اتر پردیش میں اردو افسانہ سن 60 کے بعد اس موضوع پر راکین کو تحقیقی مقالہ لکھنا تھا۔ اس ضمن میں حیثیت افسانہ نگار احمد ابراہیم علوی کا نام شامل کرنا ضروری تھا۔ 1990 میں ڈگری تفویض کر دی گئی، کام مکمل ہو گیا۔ چند ایسی بھی شخصیات ہوتی ہیں جو انسان کے دل و دماغ پر حکومت کرنے لگتی ہیں۔ ایسے لوگوں سے مل کر دل و دماغ کو فرحت اور تازگی حاصل ہوتی ہے۔ اچھا انسان، اچھا دوست نصیب والوں کو ہی میسر ہوا کرتا ہے۔ احمد ابراہیم علوی صاحب کی پوری اردو دنیا بحیثیت معروف صحافی کے جانتی ہے۔ راکین علوی صاحب کو بحیثیت فکشن نگار ان کے افسانے میں نگارشات کے آئینے میں دیکھتے ہوئے چند باتیں رقم کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ علوی صاحب افسانہ نگار ہیں اور ناول نگار بھی۔ ہر میدان میں ان کی حیثیت مسلم ہے۔ کاکوری ضلع لکھنؤ کے ایک نامور علمی و ادبی خاندان میں 19 نومبر 1942 کو پیدا ہوئے۔ صحافت کے میدان میں اپنا خاص مقام رکھتے ہوئے افسانہ نگاری اور ناول نگاری کی صرف نبی موصوف نے اپنی شناخت قائم کی۔ ان کا پہلا افسانہ 1959 میں 2 قبروں کے عنوان سے لکھا گیا۔ پہلے ہی افسانے سے مقبول ہو گئے، جب سے آج تک ان کا قلم چلتا ہی رہا ہے۔ لکھنا پڑھنا، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، ایسی ہی ان کی مصروفیات زندگی ہے۔ علوی صاحب معروف صحافی ہوتے ہوئے بھی بحیثیت فکشن نگار اردو زبان و ادب میں بہت مقبول ہیں۔ سیاحت کے سلسلے میں ہندوستان سے باہر بھی گئے، وہاں کے حالات و واقعات کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا۔ اس ضمن میں آگ اور دعا، جلتا ہوا شہر قابل ذکر افسانے ہیں۔ 2 افسانوی مجموعے بوجھل بوجھل پلکیں اور فاصلوں کے رشتے خاص مقبول ہو چکے ہیں۔ تصانیف کی فہرست اس جگہ ہے، اس طرح ہے: مجاز کچھ یادیں، اردو کا ماضی، حال اور مستقبل، پیام عید، مسافر نماز بہت دورے، پھوٹتا لہو، چاند چہرہ لوگ، اردو صحافت کی تاریخ، اردو صحافت کا جائزہ، سچ
کا बड़ा नाम, लखनऊ की अदबी हस्तियाँ व बस्तियाँ, कुछ यादें कुछ बातें, कई हज़ार अखबारात के मज़ामीन और इदारिये। मजमून बहुत छोटा है, 3-4 मिनट और लगेंगे। अलवी साहब का अफसाना बोझल बोझल पलकें इंसानी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ उस नाजुक एहसास की तर्जुमानी करता है जिसे मोहब्बत का नाम दिया जाता है। शम्मूबाजी के दिलो दिमाग में मोहब्बत का जज्बा मुमताज़ भाई के लिए होता है। वो उन्हीं से मोहब्बत करती है जबकि उन्होंने कभी मुमताज़ भाई को देखा ही नहीं। इस बात को जानने के लिए अपने एक दोस्त की तस्वीर मुमताज़ भाई की तस्वीर कहकर शम्मूबाजी को दिखाता है और इसी के पेश नज़र नदीम शम्मूबाजी के फितरी जज्बात व एहसासात से बखूबी वाकिफ़ हो जाता है। अलवी साहब की बेशतर कहानियों में खुसूसियत देखने को मिलती है कि वो नहायत छोटी से छोटी बात को भी दिलचस्प अंदाज में पेश करने का हुनर जानते हैं। अफसाना उसकी बात का ये इक़्तिबास देखिए। शरीफन नौकरानी का इंतज़ार करती है, छोटी बेगम बड़ी बेसब्री से करती हैं और शरीफन का काम यह है कि लड़कियों को स्कूल पहुंचाना है। हर रोज़ के बरक्स जुमे के दिन स्कूल सुबह का रहता है, जिसकी वजह से शरीफन एक जुमे को सुबह नहीं आ पाती है। भूल जाना एक फितरी अम्र है। इस बात को लेकर छोटी बेगम शरीफन को बहुत नाराज़ होती हैं, लेकिन आइंदा ऐसी गलती न हो इस शर्त पर वो शरीफन को फिर से घर के काम के लिए मामूर किए रहती हैं। एक दिन सुबह शरीफन जब आती है तो अहमद इब्राहिम अलवी का कलम लिखता है, ए बुआ तुम रोज़ 9 बजे आती हो, आज क्या ख़ास बात है? छोटी बेगम ने कदरे तल्ख लहजे में कहा, जिसका जवाब बुआ ने निहायत इनकसारी से दिया, मगर बीबी जी आज तो जुमा है। छोटी बेगम दंग रह गई। इस कहानी में अलवी साहब ने इस बात पर रोशनी डाली है कि जिस काम को सिर्फ एक बार जुमे को करना है, इस ज़िम्मे भूल जाना एक लाजमी अमर है। ये भूल जब छोटी बेगम से हो सकती है तो शरीफन बुआ कहाँ की मुजरिम है। अलवी साहब के अफसानों में रोज़मर्रा के घरेलू और माशरती ज़िंदगी की अक्कासी नज़र आती है। मौसूफ़ ने गहरे मुताले और मुशाहदे से घरेलू ज़िंदगी में पेश आने वाले हालात व वाक़यात पर मबनी अफसानों को अपना मौजू बनाया है। वो इंसान के दाखिली और ख़ारजी नफ्सियाती पहलू को भी बड़े दिलफरेब अंदाज में पेश करते हैं। बेरोज़गारी के बाइस घरेलू ज़िंदगी में किन किन दुश्वारियों से दो चार होना पड़ता है, इन बातों को उनसे पैदाशुदा मसाइल को उनका कलम नहायत बेबाकी से रकम करता है और उनके दिल का और उनका हल भी तलाश करता है। अफसाना जुनू के बाद एक बेरोज़गार नौजवान की कहानी है। इस कहानी में यह पेश किया गया है कि ज़िंदगी में चाहे जितनी भी मुसीबतें आएँ, कितनी ही दुश्वारियों का सामना हो, हर हाल में इंसान को खुश रहना है। वो अपनी तहरीर के ज़रिए मुसलसल जिद्दोजहद की तालीम देते हैं। खून की धार अफसाना डॉक्टर सिन्हा की कहानी है, जो एक मशहूर और मारूफ डॉक्टर है। मरीज़ों की खिदमत करना और उन्हें मौत के मुंह से वापस लाना ही वो अपना फ़र्ज़ तसव्वुर करता है। एक बार जब वो किसी मरीज़ को देखने घर से बाहर चला जाता है तो उसके बंगले पर डाकुओं का हमला हो जाता है और इस हमले में उसके भाई की जान चली जाती है। इस हादसे का डॉक्टर सिन्हा के दिलो दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। वो अपने ऑपरेशन के आले से मार काट शुरू कर देता है। उसे इंसानी खून बहाने की आदत पड़ जाती है। अब यही डॉक्टर एक वहशी दरिंदा बन जाता है और उसी के पेश नज़र वो अपने बीवी बच्चों का भी कत्ल कर देता है। वो अपने बंगले में तन्हा सिर्फ एक नौकर के साथ रहता है। डॉक्टर सिन्हा पर हर रात कत्ल करने का दौरा पड़ने लगता है। वो मरीज़ बन जाता है और जुनूनी कैफियत का शिकार हो जाता है। एक दिन वो अपने नौकर का भी कत्ल कर देता है और खूब कह लगाता है। कहानी के आखिर में डॉक्टर सिन्हा को जब कत्ल करने के लिए कोई नहीं मिलता तो वो खुद अपना ही कत्ल कर लेता है। ये अफसाना नफ्सियात पर मबनी अफसाना है जो हालात के पेश नज़र फितरी मालूम होता है। अफसाने की असल खुसूसियत ये है कि ये डॉक्टर सिन्हा जो अफसाने का मरकज़ी किरदार है, इसी के गिर्द गिर्द पूरी कहानी अफसाना बन ख़त्म हो जाती है। ताहम दिलचस्प अंदाज़ बयान कारी को अपनी जानिब मुतवज्जो किए रहता है। अलवी साहब सहाफ़ी और फिक्शन निगार के साथ और भी बहुत कुछ हैं। चंद बरस पहले उन्होंने काबिल कद्र कहन तसनीफ़ लखनऊ की अदबी हस्तियाँ और बस्तियाँ, कुछ यादें कुछ बातें शाये की हैं। इस किताब में उन्होंने लखनऊ की इल्मी व अदबी शख्सियात के अलावा अदबी तारीख़ पर भी रोशनी डाली है। आज के अहद में ये बेहद मुफीद और कारआमद तसनीफ़ है, इससे हमेशा इस्तिफ़ादा किया जाएगा। इस किताब में आसमान उर्दू के ऐसे सच्चे अदीबों, शायरों और सहाफ़ियों का जिक्र किया गया है जिन पर अच्छों की नज़र नहीं पहुँच पाती, जैसे काज़िम अली ख़ां, फरजाना एजाज़, अनवर नदीम, मोअज़्ज़ज़ जाफ़री, बेगम शहनाज सुंदर, सादत अली सिद्दीकी, अहमद मशकूर, अहमद वसी, शफ़ात अली सिद्दीकी, मौसीकार नसार, राम लाल, डॉक्टर विशेषर प्रदीप, आबिद सुहेल, मसरूर जहाँ, कैसर तमकीन, तसना अलमी, मंजर सलीम वगैरह वगैरह।
लखनऊ में आसमान उर्दू के तरक्शा सितारे रहे हैं। एक अरसे से लखनऊ की तारीखी अदबी कारगर्जियों और सरगर्मियों में मुश्तमिल कोई अहम तस्नीफ मंजर आम पर ना आ सकी। ये भी कहा जा सकता है कि इस जानिब किसी ने तवज्जो नहीं की, वरना बहुत पहले ही लखनऊ की अदबी तारीख पर मुश्तमिल कोई अहम किताब रकम की जा सकती थी। तालीमी इदारे पर इसको कोई बड़ा काम अंजाम नहीं दे सके। प्रोफेसर हज़ार शोबे उर्दू की मुलाजमत को बेहद मुलाजमत ही की तरह करते हैं और उर्दू ज़ुबान व अदब से किसी का कोई जज्बाती रिश्ता नहीं है। हमारे ज़माने के असातिज़ा नहीं रहे जो सिर्फ़ उर्दू की खिदमत ही नहीं करते थे, बल्कि अपनी पूरी ज़िंदगी उर्दू ज़ुबान व अदब की फ़लाह व तरक्की के लिए ख़ुद को वक़्फ़ कर देते थे। आज ऐसे हालात देखने को नहीं मिल रहे हैं। राकिन तालीमी इदारों में जानता रहता है, उर्दू से सच्ची मोहब्बत करने वाले इस जहानी फ़ानी से कूच करते जा रहे हैं। सिलसिला अभी जारी है। जो मौजूद हैं वो कई कई श्रेणियों में बढ़ते जा रहे हैं, ख़ुद को बेहतर और दूसरों को कमतर समझने लगे हैं। ग्रुपिज्म का दौर है। सच्चाई और हकीकत को दबाने की कोशिश भी तेज तर हो गई है। मजलूम उर्दू ज़बान लेकिन सख्त जान ज़ुबान ये सब खामोशी से देख रही है। इसके ज़वाल का अब तो कोई आलम है कि मज़हब इस्लाम के मानने वालों की एक बड़ी तादाद उर्दू नहीं जानती, जबकि ज़रूरी है कि उर्दू ज़ुबान के ज़रिए दीन को समझना है, कुरान की तालीमात पर अमल करना है। कुरान का एक एक लफ्ज़ अमल की तलक़ीन करता है, उससे हिदायत मिलती है। ये हमारे लिए लम्हे फ़िक्रिया है, इस पर गौर व फिक्र की ज़रूरत है। अल्लामा इक़बाल ने कहा था, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अहमद इब्राहिम अलवी आज के हद के मुमताज़ दानिश्वर, अफसाना निगार, मारूफ सहाफ़ी और एक ऐसी अबकरी शख्सियत का नाम है जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरमाबरदार बंदों में शुमार किया जा सकता है। उनका ज़ाहिर और बातिन एक सा नज़र आता है। बेपनाह खूबियों के मालिक हैं, मौसूफ पढ़े लिखे और सलीक़े में हज़रात की इज़्ज़त भी करते हैं और कदर भी। उनकी तेज़ रोशन आँखें ज़ुबान व अदब के सच्चे फ़नकारों को पहचानने में कोई गलती नहीं करती। मिलने वालों से खुशी का इजहार करते हैं। आने वाला चाहे जितना भी गमगीन क्यों ना हो, अपना गम भूल जाता है। उनसे मोहब्बत की और अपनेपन का जज्बा ज़ाहिर होने लगता है। इसमें कोई बनावट या दिखावे की आमेज़िश नहीं होती। खून का रिश्ता हो ना हो, इंसानियत के रिश्ते को फ़ोक़ियत देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि मौसूफ़ की उम्र दराज करे और हम जैसे उर्दू वालों पर उनकी सरपरस्ती का साया तादेल कायम रहे। ये होता ही है कि बद अच्छा बदनाम बुरा, बद न करो बद कहलाओ। तो उबैदुल्लाह साहब है ही नहीं उतने बुरे आदमी जितना हम लोग खामखा इनको कहते रहते हैं। तो कोई कहे ना कहे, अलवी साहब ने कहा था इनको बिल्कुल बोलने का मौका मत दीजिएगा वरना समझ लीजिए क़यामत हो जाएगी। तो अभी मौसूफ़ कह के गए कि मकाला तो मैंने हल्के में पढ़ दिया और लोगों ने कलामुल्लाह की तरह गर्दन डाल के सुन भी लिया, ना आह ना वाह। जबकि लखनऊ है, यहाँ लोग ज़बानदार हैं, समझ लेते हैं जुमला कोई कायदे का हो तो महफिल में उछाल ज़रूर आता है। फिर भी लोगों ने साजिश के तहत कि अगर उबैदुल्लाह साहब को ज़्यादा मौका दिया गया तो ये घातक साबित होंगे। तो जाते जाते उनका तक़रीर बाद में होगी। अब हम अलवी साहब से पूछेंगे होना क्या, इनका क्या करना है। खैर, चौधरी साहब ने मुतासिर किया, काम की बातें की और बताया कि अलवी साहब से सहाफ़ी नहीं है बल्कि फ़िक्शन के हवाले से उनका काम काबिल क़द्र है और अदब पे उनकी गहरी निगाह है। उसकी तारीख़ मुरतब करना है अदब व सहाफ़त की, तो नौजवान नस्ल को अलवी साहब की तरफ देखना होगा। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।